Hello everyone. My name is Major General Balraj Mehta and you are watching my channel Commanding Excellence. Hello and good afternoon. I'm sure some of you must have seen my message and will appreciate what I am trying to do. This is my first live, Insta Live, and I'm very happy to note that my friends are joining, and it is to wish all of you Jai Hind, and I will wait for some more 1 or 2 minutes for people to join. I am very happy to see that some of you and many of you are joining, and good afternoon to you, all of you. And this is a very, very important moment for me in my life, which I want to share with you, and henceforth will share with you everything which I know. You must have read my message. I very firmly believe that when somebody dies, he should die empty, in the sense that whatever experience, good or bad, whatever wisdom, whatever knowledge you have gained over the period of your lifetime, you must pass it on. So I retired at the age of 58 in 2018 August, and thereafter I have been trying to find ways and means as to how to communicate, because I always was very fond of teaching. I was always very fond of guiding people, and I was never shy of correcting mistakes. Even while walking on the road, I am not shy of correcting mistakes. Like many times people are doing something, somebody is throwing something from the car window or from the auto on the road. So I always try and catch up with them, stop them, and tell them, hey, you should not do this. Even in my friend circle, in my family, in my place of work, I am never shy of correcting people's mistakes, because I feel कि अगर आप उनको बताओगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा, और अगर उनको पता नहीं चलेगा तो वो फिर बार बार वही गलतियां करते रहेंगे, और वो गलतियां अल्टीमेटली उनके लिए, उनकी चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे फैमिली हो, चाहे वो उनका वर्क प्लेस कोलीग्स हों, उनमें उनका रिलेशनशिप जो है वो अल्टीमेटली खराब होता है. और आई टेक इट एज माई ड्यूटी that I have to correct people and I must contribute my bit. So in the same vein, I have decided that I should be talking to you people, and most of you are junior, most of you are kids, and most of you are yet to do something substantial in your life. Even if you are doing something substantial, you still can always improve. So ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए I thought that I will start sharing with you my life's experiences and trying to do my bit to the society. This is something which I want to do for the society. I want to do something for the organization, something for the family, friends, and anybody who will care to listen. So coming on to the first topic of today, I just want to talk about leadership in general. Sorry. हम लोग जब लीडरशिप की बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि लीडरशिप जो है वो बहुत सारे सीनियर लोगों के लिए ही होती है, जो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, या जो बिजनेस ओनर हैं, अंबानी है, अडानी है, या जो बहुत बड़े बड़े अफसर हैं, आर्मी के जनरल हैं, उन्हीं लोगों के लिए लीडरशिप रिक्वायरमेंट है. तो ये जो गलत फहमी है, ये गलत फहमी हमारे को नहीं होनी चाहिए. हर एक आदमी जिसके पास इंडिपेंडेंट काम करने के लिए जिम्मेदारी है और जिसके पास डिसीजन लेने का फ्रीडम है, वो आदमी लीडर है.
वो अपने अपने जगह पर लीडर है। अगर आपके किचन में कोई खाना बना रहा है और उसको डिसीजन लेना है कि मैंने नमक कितना डालना है, मैंने मिर्ची कितनी डालनी है, कितनी देर तक तड़का लगाना है, कितना उबालना है, रोटी को कितना सेकना है, तो वो भी एक अपनी जगह पर लीडर है। आर्मी में जैसे कहते हैं कि आर्मी कमांडर से नीचे कोर कमांडर, जीओसी, डिव कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, बटालियन कमांडर, कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर, सेक्शन कमांडर, इवन लंगर कमांडर, जो आपके कुक हाउस का संचालन कर रहा है, वो भी एक लीडर है, वो भी एक कमांडर है। सो लाइफ में आपने ये देखना है कि आप कोई भी जगह पर काम कर रहे हो, आप वहां पर एक लीडर का रोल अदा कर सकते हैं, और लीडर का रोल अदा करते करते ही आप ऊपर बड़े ओहदे पर जाते हैं, बड़ी पोजीशन पर जाते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मैं सीधा पैदा हुआ, बड़ा हो गया, ग्रेजुएशन कर ली और अब मैं जाकर के सीधा जनरल मैनेजर लग जाऊंगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लग जाऊंगा या फैक्ट्री का ओनर लग जाऊंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। जो भी कोई लीडर है वो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस से ही ऊपर जाता है, और उसको नीचे के लेवल पर काम करना जरूरी होता है। जब भी आप ये देखते हैं कि कोई भी अगर पैराशूट के थ्रू उतर के आपके ऊपर लीडर बन जाएगा, मान लीजिए कोई फैक्ट्री का मालिक है और उसका बेटा एमबीए करके आता है और सीधा आकर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लग जाएगा, तो वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो भी समझदार माँ बाप हैं वो पहले चाहे जितने भी अमीर हों, लेकिन पहले अपने बच्चों को क्वालिफिकेशन करने के बाद पहले उनको ग्राउंड पर काम में डालते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बिल्डर हैं, लेकिन पहले वो जो है अपने बच्चों को प्रोजेक्ट में भेजेंगे, फिर नीचे ऑफिस में रखेंगे, फिर फाइनेंस वाले के पास रखेंगे, फिर टेंडर वाले के पास रखेंगे, और उसके बाद कहीं पर उसको उठा करके डिसीजन देने के लिए वो कहेंगे। अभी अनअपोलोजेटिकली माई सेल्फ इज सेइंग इफ यू कैन लीड योर सेल्फ टू योर ड्रीम यू कैन बी अ ग्रेट लीडर। ये बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ये सोचें कि मैं कैसे एक बड़ा लीडर बन सकता हूं, उससे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि मैं एक अच्छा वर्कर कैसे बन सकता हूं। और अगर आप एक अच्छा वर्कर बनेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके ऊपर में जिम्मेदारियां आती रहेंगी, और अल्टीमेटली आपके बिना पता लगे ही आप एक लीडर बन जाएंगे। तो अभी अगर आप ये देखें कि आप कैसे अच्छा वर्कर बनते हैं, अपने आप में एक सोच के देखिए कि अगर कोई ऑफिस का सीईओ है या कोई फैक्ट्री का मालिक है या कोई बिजनेस ओनर है, अगर वो अपने यहाँ पर लोगों को नौकरी पे रखता है तो वो अपने लोगों से उनसे क्या चाहेगा? वो यही चाहेगा कि वो शरीफ हो, वेल एडजस्टेड हो, फालतू की लड़ाई झगड़ा ना करता रहे, अच्छी तरह से ड्रेसअप होके आए, अपना डिसिप्लिन में रहे, अपने काम को जानता हो, अपने सीनियर की बात को माने, कंपनी की पॉलिसी, कंपनी का जो रूल रेगुलेशन है, जो उसके कानून है, उनको मान करके उसी हिसाब से काम करे, जिम्मेदारी से काम करे। अगर उसको एक्स्ट्रा बैठना पड़ रहा है तो एक्स्ट्रा बैठ के काम करे, दिए हुए काम को समय पर काम कंप्लीट करे, और जो काम है उसका फीडबैक दे कि जी ये काम आपने दिया था, ये काम हो गया, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। और इसी तरह से अगर वो काम करता है तो वो एक डिपेंडेबल, वेल एडजस्टेड और यूजफुल वर्कर बनता है। उसको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और उससे वो धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारी, उसका स्कोप ऑफ वर्क, उसकी तनख्वाह, उसका ओहदा, उसकी इज्जत अपने आप से बढ़ने लग जाती है। सो सडनली आप जो है एकदम से ही कोई बहुत बड़ा ओहदा आपको नहीं मिलता है। तो मिलता भी है तो उसकी जिम्मेदारी है आपकी कि आपने उसमें रह करके अपने लिए इज्जत कमानी है। इज्जत एक लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी चीज है, एक लीडर के लिए बहुत जरूरी चीज है। और अगर आपके सबॉर्डिनेट, आपके जूनियर आपकी इज्जत करेंगे तो तभी वो आपकी बातों को बिना किसी शक के, बिना किसी डाउट के मानेंगे और उसका काम करेंगे और आप अपना काम करा पाओगे। सो लीडरशिप जो है वो
एक आर्ट है और एक साइंस है। लीडरशिप एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, और वो ये सिखाती है कि आप अपने सबॉर्डिनेट से, अपनी टीम से, अपने ग्रुप से जो आप चाहते हैं वो काम कराएं, और करने वाले इस तरह से करें कि वो लोग चाहते हैं कि ये काम हो। समझ आई मेरी बात? आप कुछ काम करवाना चाहते हैं, लेकिन वो काम आप इस तरह से करवाएं कि करने वाला सोचे कि यार ये तो मेरा ही काम है। ये असली लीडरशिप है। और ये लीडरशिप का स्टेट तब पहुंचेगा जब आपके सबॉर्डिनेट आपसे इतने इंप्रेस हैं, आपकी नॉलेज से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके बिहेवियर से, आपकी सिंसेरिटी से, कि वो आपकी कसम नहीं खाते और जो आप कहोगे वो करके देंगे, और वो बिल्कुल ठीक टाइम पर करके देंगे। और ये आपने अगर ये पैदा कर लिया, अगर ये भावना आपकी टीम में पैदा हो गई, तो फिर आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता है। और ये भावना पैदा करने के लिए जो जो भी क्वालिटीज मैंने अभी बोली हैं वो आप में होनी चाहिए। आर्मी में जैसे हमें बोलते हैं कि ऑफिसर जो है वो कंधे के ऊपर रैंक लगाता है, और जो सबॉर्डिनेट है वो उस रैंक की इज्जत करके आपका हुक्म तो मानेगा, लेकिन अगर आपके अंदर में वो काबिलियत नहीं है, वो क्वालिटीज नहीं है, और अगर वो आपकी इज्जत नहीं करता है, तब फिर वो आपको अंदर से इज्जत नहीं देगा, और जो उसका हुक्म मानने का प्रैक्टिस है या जितना वो आउटपुट देगा वो 100% नहीं हो सकता है। सो इन्हीं दूसरे शब्दों में इसको कहा जाता है कि रिस्पेक्ट कैन नॉट बी कमांडेड, रिस्पेक्ट हैज टू बी, माई फॉल्ट, रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड। आप जो है रिस्पेक्ट की मांग नहीं कर सकते कि क्योंकि मेरे कंधे पे रैंक लगा है तो तुम मेरी इज्जत करो। रिस्पेक्ट हैज टू बी कमांडेड। आपने अपने काम से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने बिहेवियर से, अपना कंडक्ट से, आपके पर्सनल एग्जाम्पल से जब आप अपना लाइफ में करके दिखाएंगे, तब लोग ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत करेंगे। सो ये याद रखिए, रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड, रिस्पेक्ट हैज टू बी कमांडेड। और जैसा मैंने बोला, हर एक आदमी अपनी अपनी जगह पर लीडर है। अभी किसी ने मुझे एक एग्जाम्पल दिया, बहुत पुराना एग्जाम्पल है, आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। तो एक कोई ज्योतिषी था जो हाथ की लाइनें पढ़ के भविष्य बताया करता था, या अपने बारे में जो भी है लोग जानना चाहते हैं उनको बताता था। तो एक बार उसके पास एक आदमी आया और उसने अपना हाथ उसको दिखाया, और ज्योतिषी ने उसको बोला कि आप जो है, आपके हाथ में राजयोग है। सो वो आदमी हंसने लग पड़ा। उसने कहा, भाई कहाँ का राजयोग, मैं तो रिक्शा चलाता हूं। सो अब जो है वो ज्योतिषी ने उससे जब बातचीत करी तो वो पता चला कि वो रिक्शा यूनियन का प्रेसिडेंट है। तो क्या हुआ कि भाई उसके हाथ में राजयोग है, तो कहीं का तो वो लीडर है, चाहे वो रिक्शा चलाता है खुद, और लेकिन वो रिक्शा यूनियन का प्रेसिडेंट है। तो इसी तरह से अगर चाहे हम स्कूल में मॉनिटर हैं, चाहे हम एक एग्जीक्यूटिव लेवल पर हैं, चाहे हम जूनियर मैनेजर हैं, चाहे हम सीनियर मैनेजर हैं, चाहे हम कोई ऑफिस की देखभाल कर रहे हैं, चाहे हम किसी मशीन की देखभाल कर रहे हैं, चाहे हम फैक्ट्री में सुपरवाइजर हैं, हर एक आदमी अपनी अपनी लाइफ में लीडर है। अगर आप बस ड्राइवर को देखो तो वो अपने जगह पर एक लीडर है। वो इतनी बड़ी करोड़ों रुपए की बस को लेके चलाता है, और इतनी सारी सवारियां जिनकी कोई कीमत नहीं है जान की, वो लोगों को चलाता है, तो वो भी एक लीडर है। बस के कंडक्टर को अगर आप देखें तो वो बस को कंट्रोल कर रहा है, ट्रैफिक रूट को कंट्रोल कर रहा है, टाइमिंग्स को कंट्रोल कर रहा है, टिकट ले रहा है, उसके पैसे का हिसाब किताब रख रहा है, और वो पैसा जमा करा रहा है जिम्मेदारी के साथ, इंश्योर कर रहा है कि कोई एक्सीडेंट ना हो। तो वो भी एक लीडर है। तो क्यों हम सारे के सारे चाहते हैं कि हम लोग फैक्ट्री के ओनर बन जाएं, और हम लोग एकदम से ही प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, या हम चीफ मिनिस्टर बन जाएं, या हमारे पास एकदम से ही हेलीकॉप्टर, जहाज और बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, ट्रक यूनियन हो, ट्रक के मतलब कंपनी हो। इतना सारा पैसा अगर हम उसके पीछे भागेंगे, उस पैसे का भाई मेरे करोगे क्या? क्या करोगे? रात को आपने एक कमरे में सोना है, एक बिस्तरे में सोना है,
जितना खाना आप खा सकते हो उससे ज्यादा खा नहीं सकते, जितना आप हजम कर सकते हो उससे ज्यादा खाओगे बीमार पड़ोगे। आप एक समय में अगर चल के जा रहे हो तो दो पैरों में दो जूते और एक पैंट कमीज, ऊपर से चार टाई लगा लो, कोट लगा लो, चाहे घड़ी पहन लो, चाहे कितनी कुछ 6 घड़ियां थोड़ी पहन के घूमोगे, 15 चश्मे लगा के थोड़ी घूमोगे, 15 गाड़ियों में एट अ टाइम थोड़ी सफर करोगे। सो अपनी जो हमारी जो इच्छा है, हमारा जो एक तरह से कहना चाहिए लालच है, उसको अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारे को पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर हम अच्छा कर पाते हैं तो वो एक सबसे बड़ी संतोष की बात है। वॉरेन बुफे जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जिसकी पता नहीं पिछले 60-70 सालों से जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अभी भी जो पहले उसके पास घर था 40-50 साल से, उसी घर में रह रहा है और अपनी पुरानी गाड़ी वो खुद चलाता है। अब तो पता नहीं 90 साल के पास हो गया होगा तो ड्राइवर रखा होगा, अदरवाइज वो वही गाड़ी चला रहा है और उसी घर में रह रहा है, क्योंकि वो कह रहा है इससे ज्यादा मुझे जरूरत ही नहीं है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एम्बिशन ना रखें, एम्बिशन जरूर रखें, एम्बिशन से ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। अभी धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप में काम करते थे फॉरेन में, तो उन्होंने वापस आकर के अपनी एक रिलायंस की वो कपड़ों वाली फैक्ट्री लगाई, उसको आगे बढ़ाया, उसके बाद फिर वो पेट्रोलियम में चले गए, उसके बाद वो कम्युनिकेशन में चले गए। सो आपको पता चल जाएगा कि एक शरीर जो है वो शरीर कितनी देर तक आपका साथ दे सकता है। तो इसलिए आप इन चीजों के पीछे ना दौड़ें, अपना पर्सनैलिटी, अपना कंडक्ट और अपना जो सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी फैमिली के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप पूरा करें अच्छी तरह से, खुशी खुशी पूरा करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपनी जिम्मेदारियों को लॉफुली एक्नॉलेज करें। और उसके बाद भगवान जो आपके लिए डेस्टाइंड है वो आपको देगा, उसमें कोई शक नहीं है। और जो बहुत अमीर लोग हैं वो कोई सोने की टुकड़े नहीं खाते हैं, वो भी यही गेहूं और बाजरे की रोटियां खाते हैं, और कोई इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। मेरे भाई साहब, एक याद है मुझे, 1976 की बात है ये, वो सऊदी अरेबिया में काम करते थे इंडियन एम्बेसी में, तो वो कहानी सुनाया करते थे कि वहां पर एक ऐसा शेख है जिसने रोल्स रॉयस गाड़ी को 18 कैरेट सोने में प्लेटिंग करा रखी है। अब रोल्स रॉयस दुनिया की मेरे ख्याल सबसे महंगी गाड़ी है, और उस गाड़ी प्लेटिंग नहीं करा रखी, सॉरी, उसकी जो बॉडी है वो 18 कैरेट गोल्ड की बनी हुई है। तो अगर आप उसको देखिए तो वो 18 कैरेट गोल्ड अगर की बॉडी है, मतलब अगर वो 40-50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 100 किलो गोल्ड वहां लगा हुआ है, तो उसका किसी को कोई फायदा है? वही बात है, वो लोग कहते हैं कि अगर आपके पास 300 रुपए की घड़ी है या 3 लाख रुपए की घड़ी है, टाइम वो वही बताएगी। आपके पास 15 लाख की कार है या आपके पास 1.5 करोड़ की कार है, वो एक जगह से दूसरी जगह वैसे ही पहुंचाएगी आपको। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप 15 करोड़ की गाड़ी 15 करोड़ की गाड़ी में बैठोगे तो चांद पे चले जाओगे। सो पैसों के पीछे भागना, मटीरियलिज्म के पीछे भागना, इसको अगर हम थोड़ा कंट्रोल करें, एम्बिशन को रखें, बिल्कुल रखें, क्यों नहीं रखें, एम्बिशन होनी चाहिए, अपनी लाइफ को बड़ा करने के लिए भी होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे भागते हुए अपने प्रिंसिपल्स के साथ में, अपने सिटीजन की या सोसाइटी की जो जिम्मेदारियां हैं उनके साथ में कानून से खिलवाड़ करके अपने लिए मुसीबत खड़ी करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सो इन्हीं बातों के साथ में अभी मैं आज का प्रोग्राम मेरा ख्याल बंद कर रहा हूं। अभी लोग शायद अभी ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो अभी देखता हूं मैं, अगर कोई लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं तो थोड़ी देर और मैं बातचीत करूंगा। लेकिन मेरा कहने का यही मतलब है कि हर संडे 2 बजे मैं इस प्रोग्राम को लाइव करूंगा, जिसमें हम लोग लीडरशिप के बारे में बातचीत करेंगे। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अपनी तरफ से कोई सजेशन मुझे दें और मेरे को बताएं कि भाई मैं किस चीज के ऊपर मैं बात करूं, या अगर आपके लिए कोई एक
रोड ब्लॉक आया हुआ है, कोई परेशानी है, कोई आपको सोल्यूशन चाहिए कि भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर आपकी कोई मदद कर सकूं, बिना आपका प्राइवेसी को टच किए हुए, बिना आपका नाम लिए हुए, अगर एक कॉमन पॉइंट पे ऊपर बात की जाए तो हो सकता है कई लोगों का भला होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी और बात बताता हूं। मैं जैसे आपको बोला था, मुझे कभी शर्म नहीं आती कि मैं किसी को चेक करूं, इसी तरह से मुझे अपने डाउट को पूछने में कभी शर्म नहीं आई। तो चाहे मैं स्कूल में था, चाहे मैं कॉलेज में था, चाहे मैं आर्मी में जब ट्रेनिंग कर रहा था, या जब मैं आर्मी में ऑफिसर बन गया था, तब भी अगर मुझे कोर्स वगैरह में जाना पड़ता था, तो मैं कोर्स के दौरान मैंने कभी भी अपने दिल में छोटे से छोटा शक जो है वो मैंने अपने दिल में रखा नहीं, और मैं हमेशा से हाथ खड़ा करके और अपने इंस्ट्रक्टर से मैं पूछता था कि मुझे ये समझ नहीं आया, आप मुझे बताइए। मेरे सारे इंस्ट्रक्टरों ने अलग अलग समय में मुझे यही कहा कि वेल डन बलराज, गुड के तुमने ये क्वेश्चन पूछा है, और ये मत सोचना कि ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आपकी इस क्लास में आधे से ज्यादा लोगों के दिमाग में ये शक है, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है पूछने की। अगर आपके दिमाग में कोई शक है, हो सकता है कि आप पूछ रहे हो और आप जो है अपना, दूसरे लोग नहीं पूछ रहे हैं लेकिन उनको भी ये शक है। अभी ब्रावो टू अल्फा, जय हिंद। आप मेरे से पूछ रहे हैं कि हाउ टू बी अ लीडर एंड नॉट बी कंफ्यूज्ड एज अ बॉस और डोमिनेंट पर्सनैलिटी। देखिए, लीडर जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है डेमोक्रेटिक लीडर और एक होता है ऑटोक्रेटिक लीडर। तो डेमोक्रेटिक लीडर जो है वो सब लोगों की बातचीत से बात करके उनकी जो बातें हैं वो ध्यान में रखता है और उसके हिसाब से काम चलाता है। ये जो डेमोक्रेसी है ये क्या करती है कि आपको एक तो स्लो कर देती है, और आप सब लोगों को उस तरह से मना नहीं सकते, सब लोग एक वेवलेंथ पे नहीं आ सकते हैं। तो जो ऑटोक्रेटिक लीडर है वो एक बिल्कुल डिक्टेटर की तरह रहता है, और वो कहता है कि भाई बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूं वही करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। ये अगर हो तो उस समय फिर वो नीचे वाले जो जूनियर हैं वो कुछ भी अपना दे नहीं सकते हैं ओपिनियन, और ना उनकी कोई बातचीत सुनी जाती है। तो उनके दिमाग में ये एक तरह से ग्रज रहता है, दुख रहता है। हेमंत यादव जी बोल रहे हैं कि आई रिक्वेस्ट टू बी इन योर वीडियो। अभी मुझे पता नहीं है कि आपको मैं वीडियो में कैसा शामिल करूं, अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भी इन्वॉल्व हो सकें। अभी के लिए मैं माफी चाहता हूं। द पॉइंट इज कि हर समय आप डेमोक्रेटिक लीडर नहीं हो सकते, और हर समय के लिए आप ऑटोक्रेटिक लीडर नहीं हो सकते। तो जब थोड़ा सा प्रेशर कम है, जब थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम है, तो तब आप जो है सबकी सुन के और आराम से काम कर सकते हैं। जबकि प्रेशर, टाइम का प्रेशर है, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, क्राइसिस है, उस समय अगर आप लोगों के सजेशन सुनेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उस समय यू हैव टू बिकम अ ऑटोक्रेटिक लीडर। जब पीस स्टेशन में हम ट्रेनिंग करते हैं उस समय हम लोग डेमोक्रेटिक होते हैं, जब लड़ाई में हम लोग जाते हैं उस समय हम ऑटोक्रेटिक होते हैं। ये जो चीज है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात और बताता हूं आपको, लीडरशिप की एक्सरसाइज में आप लोगों से सजेशन ले सकते हैं, लोगों से एडवाइस ले सकते हैं, लोगों की अपोजिशन से आप सुन भी सकते हैं, अपने प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपना रास्ता बदल सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि देयर इज अ टाइम फॉर डिस्कशन। ध्यान से सुनना, देयर इज अ टाइम फॉर डिस्कशन एंड देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिसीजन। देयर इज अ टाइम फॉर डिस्कशन एंड देयर इज अ पॉइंट ऑफ डिसीजन। तो जब आपने प्लानिंग कर रहे हैं, जब आप प्रेशर नहीं है, आप लोग इसके ऊपर में काम कर सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब एक पॉइंट पे डिसीजन हो गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस आदमी ने ये काम करना है, तो फिर आप जो है उसके बाद कोई डिस्कशन अलाउड नहीं होनी चाहिए।
ये भी एक लीडरशिप की पहचान है कि अगर आप हर समय ही अपने प्लान चेंज करते रहेंगे, हर समय ही डावाडोल होते रहेंगे कि इसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, फिर ऐसा कर लो वैसा कर लो, देन यू आर नॉट अ लीडर. So leader has to make a solid plan and then stick to that plan, come what may. So this is how you should be acting yourself, preparing yourself and training yourself. अभी किसी का पॉइंट आया कि हाउ टू मेक अ पर्सनैलिटी ऑफ एन आर्मी ऑफिसर. सो देखिए, आर्मी जो है वो एक बहुत ही डिफरेंट प्रोफेशन है. मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था, सबसे पहले जब मैं गया, हमारे जो कमांडेंट थे लेफ्टिनेंट जनरल मैथ्यू थॉमस, उन्होंने हमारा पहला एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया. ये मैं बात आपको बता रहा हूँ 1982 जनवरी की. तो 1982 जनवरी में हमारा ट्रेनिंग शुरू हुआ था और उस समय जो सबसे पहला लेक्चर, ओरिएंटेशन लेक्चर था, हम लोग वहां बैठे हुए थे, तो कमांडेंट साहब ने लेक्चर लिया था. उसमें उन्होंने जो एक शब्द, एक वाक्य कहा कि आर्मी इज नॉट अ कैरियर, आर्मी इज अ वे ऑफ लाइफ. सो आपको एक तरह से अपनी जान अगर आप न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं तो फिर आपका अपना इसमें कुछ नहीं रहता है. सब कुछ आर्मी का ही होता है, सब कुछ देश का होता है. इनफैक्ट आपके बच्चे भी जो है वो भी आर्मी आर्मी करते रहेंगे, आपकी वाइफ जो है उसी हिसाब से चलेगी, और आप सब लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में रंग जाएंगे और उसी हिसाब से चलेंगे. तभी तो सबसे पहले आप शुरू से देख रहे हो कैंटोनमेंट्स आर एब्सोल्युटली सेपरेट. कैंटोनमेंट्स और सिविल आबादी को कभी भी आपस में मिक्स नहीं किया जाता है, बिकॉज एक आर्मी कैंटोनमेंट, एयरफोर्स स्टेशन, नेवल स्टेशन का एक अपना अलग से कल्चर है. और अगर आप कैंटोनमेंट में अगर आपको जाने का मौका मिलेगा, आप देखोगे कि किस तरह से वेल मेंटेन्ड है, सड़कें साफ सुथरी हैं, मार्क्ड है, कोई गंद नहीं होगा, पेड़ पौधे बिल्कुल सफाई से आपको मेंटेन किए हुए मिलेंगे, घर बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको पेंट किए हुए मिलेंगे, घरों के बाहर नेम प्लेट लगी होगी, गाड़ियां दस्तूर से खड़ी होंगी, पेट जो है वो कुत्ते भी ठीक तरह से घुमाए जा रहे होंगे, और बच्चे जो है आपस में खेल रहे होंगे इधर उधर खुशी खुशी, और काफी सारा खेलने का सामान, काफी सारा खेलने की जगह. सो एक अलग तरह का परिवार है, आर्मी एक अलग तरह का परिवार है. और उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो है लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी और ब्रेवरी. ब्रेवरी क्या है? ब्रेवरी अगर हम कहते हैं कि ब्रेव जो है वो ऐसा, वो आदमी नहीं है जिसको डर नहीं लगता. दोबारा से सुनिए, ब्रेव वो आदमी नहीं है जिसको डर नहीं लगता, जिसको खतरा पता ही नहीं है, जिसको महसूस ही नहीं हो रहा. ब्रेव वो आदमी है जिसको खतरे का एहसास है और इसके बाद में फिर वो काम करता है. वो आदमी असल में ब्रेव है. फील्ड मार्शल मानेकशॉ का एक बहुत ही फेमस सेइंग है. ही सेज, इफ एनीबडी सेज ही इज नॉट अफ्रेड, तो आइदर ही इज टेलिंग अ लाई और ही इज अ गुरखा. सो हर एक आदमी को डर लगता है. मैं भी जब काउंटर इंसर्जेंसी में, हमने बहुत सारे टेररिस्ट के साथ हमारा एनकाउंटर हुआ, बहुत लोगों को हमने मारा, फायर में भी मारा है, एनकाउंटर फेस टू फेस भी मारा है. और एक बार ऐसे ही मैं घर के अंदर, हम लोग एक टेररिस्ट का पीछा करते करते घर में घुसे और हमने सर्च किया तो वो पता चला ऊपर वाली छत में बैठा हुआ है. और मुझे याद है उस समय मैं और एक मेरा हवलदार हम अंदर थे, तो मेरा मुंह जो है अंदर से सूख गया था, जीभ सूखी हुई थी कि पता नहीं कहां से वो फायर करेगा. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैंने छोड़ दिया. I was there inside. I was there and then I came out and then we blasted that person to death because he was firing at us. So डर सबको लगता है. तो ये डर लगने के बाद भी अगर आप हिम्मत से काम करते तो वो आदमी बहादुर है. तो आर्मी ऑफिसर बनने के लिए आपको जो बेसिक क्राइटेरिया है वो है आपका ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, जो है अपना साफ सुथरे तरह से काम करना, लॉ को फॉलो करना, बड़ों की इज्जत करना. अगर आप बड़ों की इज्जत करेंगे, आप देश के कानून की इज्जत करेंगे, आप अपने टीचर की इज्जत करेंगे, आप अपने सीनियर्स की इज्जत करेंगे, उनका हुक्म मानेंगे, आप एक अच्छे सोल्जर बनेंगे और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप एक अच्छे लीडर बनेंगे. सो ये
मेरा एक सबसे जो बड़ा मेरा क्लोज टू माय हार्ट बात है, जो मैं बार बार बोलता हूं, लीडर्स पैदा नहीं होते हैं, लीडर्स को ट्रेन किया जाता है। लीडर्स कैन बी ट्रेन्ड, दे कैन बी ग्रूम्ड। होता क्या है कि कुछ एक आदतें हैं, कुछ एक हैबिट्स हैं, कुछ एक ट्रेट्स जिनको बोला जाता है, जो आपके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं, वो आपने आइडेंटिफाई कर सकते हो। 14, 15, 20 ट्रेट्स हैं, और अगर वो ट्रेट्स आप आइडेंटिफाई कर लो, उसके ऊपर में आप अपना बिहेवियर को मॉडिफाई करो, सो तब फिर आप जो है एक अपने आप को, किसी भी आदमी को एक लीडर बना सकते हो। आप अपने आप को लीडर बना सकते हो, अपने बच्चों को लीडर बना सकते हो, और आप बाकी सब लोगों को बना सकते हो। अब हम लोग जो एनडीए में लोग जाते हैं, जो सीडीएस का एग्जाम दे करके जाते हैं, और जो आईएमए में सिलेक्ट होते हैं, तो जब हम फर्स्ट टर्म में सिलेक्ट होते हैं तो सारे के सारे कोई जनरल ऑफिसर या आर्मी कमांडर या ब्रिगेडियर के लेवल के तो नहीं ना हो जाते। वो बिल्कुल कच्चा घड़ा है, कच्ची मिट्टी है, लेकिन वो मिट्टी है चिकनी। अगर आप कुम्हार के पास भी जाओगे तो जब वो जाता है, आपने देखा होगा, अगर गांव में किसी को पता हो तो कुम्हारों के पास, घर के पास में उन्होंने मिट्टी का ढेर लगा रखा होता है। वो पता नहीं कहां कहां से ढूंढ के मिट्टी लाते हैं। कौन सी मिट्टी लाते हैं? चिकनी मिट्टी लाते हैं, क्योंकि चिकनी मिट्टी से ही पानी रुकेगा, उसी से घड़ा बनेगा। रेत वाली मिट्टी से कभी घड़ा नहीं बनता है। सो अगर आपने मिट्टी अच्छी सिलेक्ट करी है तो घड़ा बनेगा। इसी तरह से सिलेक्शन प्रोसेस जो है, जो आपका रिटन टेस्ट है, जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, जो आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट है, जो आपका इंटरव्यूज है, जो आपका मेडिकल है, ये सब आपको एक तरह से सिलेक्शन में देखते हैं कि भाई ये मिट्टी चिकनी है कि नहीं। और अगर वो चिकनी मिट्टी है तो उसको आपको ट्रेनिंग देते हैं। वो 1 साल 1.5 साल आपको मोल्ड करेंगे, आपको सिखाएंगे, और इसी सोसाइटी से ही तो लोग निकलते हैं। जिस सोसाइटी में चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, नशे पड़ते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग भाग जाते हैं, मर्डर कर देते हैं, रेप कर देते हैं, चोरियां करते हैं, एग्जाम में नकल मारते हैं, तो ये सब लोग उसी सोसाइटी से चुन करके वो मटेरियल जाता है, जिसको के 1-1.5 साल ट्रेनिंग करके, एनडीए में 3 साल, 1 साल आई में 4 साल, सैनिक स्कूल से लेते हो तो 7 साल, 8 साल ट्रेनिंग करने के बाद उसी मटेरियल को लीडर बना दिया जाता है। सो ये बात आप ध्यान रखिए कि लीडर जो है वो पैदा नहीं होते हैं। कोई भी आदमी पैदाइशी लीडर नहीं है। उसको लीडर बनने के लिए सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और उसके अंदर में वो बेसिक जो आदतें हैं वो उसको अपने अंदर में पैदा करनी पड़ती हैं। अपने चरित्र में, अपने कंडक्ट में, अपने बिहेवियर में वो सारी चीजें उनको लानी पड़ेंगी, तभी जो है वो एक लीडर बन पाएगा। सो इसमें मुझे पूरा यकीन है कि जो भी हम लोग यहां पर हैं या जो हम लोग यहां पर नहीं हैं, आप सब में वो काबिलियत है कि आप लीडर बन सकते हो। अभी देखो, सबसे जो एक इंडिकेशन वाली चीज ये है, अभी इतने सारे लोग मेरे पास जुड़े हुए हैं अभी, और एक आपने बस मैसेज देखा कि भाई इंस्टाग्राम लीडरशिप के ऊपर मैं करने वाला हूं, आप यहां पर आ गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप में वो इच्छा है, इच्छा शक्ति है कि मैं एक अच्छा लीडर बनूं, अपनी लाइफ में तरक्की करूं। तो अगर ये इच्छा शक्ति है तो आप ये समझिए कि आपने पहली मंजिल तो वैसे ही पार कर ली। अब सिर्फ आपको रास्ता ढूंढना है। आप रास्ते के ऊपर शुरू हो गए, स्टार्ट पॉइंट पे आप आ चुके हो। आगे बस अपना रोल डाउन करिए एंड कैरी ऑन। और अभी करण वॉरियर 01 पूछ रहे हैं कि हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। सो भैया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यू हैव टू प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपना कम्युनिकेशन आ जाएगी। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। ज्ञानी जैल सिंह जो बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर थे, वो उनकी भाषण देने की काबिलियत बहुत बड़ी थी। वो पहले अपना गुरुद्वारे में या उससे पहले जो भी सोसाइटी में आगे पीछे वो काफी एक्टिव थे रिलीजियस स्फीयर में, इसीलिए उनको ज्ञानी बोला जाता है। तो वो कह रहे थे, उनकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है, वो कहते हैं भी जब मैं छोटा बच्चा था तब से मैं गुरुद्वारे में जाना शुरू कर दिया था, और उस समय गुरबाणी का पाठ करना या कुछ भी संगत के सामने कुछ एक लेक्चर लेने में मुझे बहुत झिझक होती थी। तो उस समय वो छोटे रहे होंगे,
आई डोंट नो क्या उम्र थी, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वही 12, 14, 16, 18, 20 साल की उम्र रही होगी। तो वो कहते हैं जो हमारे गुरुजी थे उन्होंने ये कहा कि तुमने जो बातचीत करनी है, जो लेक्चर लेना है, वो पहले आप बाहर जाओ और मूलियां जो होती हैं, रेडिश मूली, तो मूली का जो खेत लगा होता है, पे वहां जाओ और मूलियों के खेत के सामने खड़े होके या बैठ के अपना पूरा लेक्चर बोल लो। और ये सोचो कि ये जो सामने मूलियां हैं ये तुम्हारी संगत है बैठी हुई, जो सामने की तुम्हारी भीड़ गुरुद्वारे में आती है ये वो भीड़ है, ये मूलियों को तुम पूरा लेक्चर सुनाओ। और उसके बाद जब कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके बाद आप आओ और वहां पर आकर के गुरुद्वारे में आप लेक्चर लो और आपके सामने संगत बैठी होगी, तो आप अपने दिमाग में ये सोचना कि ये सब सारी मूलियां हैं। सो बेसिकली क्या है, आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है, डर खत्म करना है, पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है वो अगर आप खत्म करते हो तो आप अपनी बात को अच्छी तरह से कह सकते हो। और आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो आप लेक्चर लेना चाहते हो या आप बात करना चाहते हो, आप उसके मास्टर हो भाई। आपसे ज्यादा कोई नॉलेज उस सब्जेक्ट की किसी और को नहीं है, तो फिर डरने की क्या बात है, झिझकने की क्या बात है। इसके अलावा जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें आप अपना जो थ्रोट है, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है, किसी की जबान मोटी होती है, किसी की जबान पतली होती है, तो किसी के शब्द जो हैं बड़े क्लियर निकलते हैं, किसी के थोड़े फंस फंस के निकलते हैं, तो वो आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जिस भी भाषा में आप बोलना चाहते हैं, अभी इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो लैंग्वेज के ऊपर तो आना चाहिए ना, कंट्रोल होना चाहिए, कमांड होनी चाहिए। अभी आप देखिए लैंग्वेज से हमारे को ना बहुत कई बार बहुत ज्यादा वो हो जाता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं मतलब सोसाइटी में मेरी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। अभी आप ये बताइए भाई, मुझे फ्रेंच नहीं आती और अगर मुझे आप पेरिस की सड़क पे उतार दो और बोलो जी कि आप अभी किसी को ना तो कोई इंग्लिश बोलता है और हिंदी तो वहां किसी को आएगी नहीं और मेरे को फ्रेंच नहीं आती है, तो मैं अपनी बात को नहीं ठीक तरह से बता पाऊंगा, तो क्या मैं बेवकूफ हो गया? क्या मेरी इंटेलिजेंस कम हो गई? क्या मेरी नेचुरल जो बुद्धि है वो उसका वैल्यू कम हो गया क्या? नहीं ना। सो ये लैंग्वेज एक सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल है, आपने अपनी बात को समझाना है। आप अपनी बात, अगर मैं तमिलनाडु में जाता हूं, अब मैं जब इंस्ट्रक्टर था, जब तमिलनाडु में, चेन्नई में, मद्रास में, उस समय मद्रास बोलते थे, तो 1992 से 93 तक मैं 94 तक मैं वहां पे था, तो वहां पे उस समय हिंदी के खिलाफ बहुत लोग थे, एंटी हिंदी एजिटेशन वगैरह चल रही थी, करुणानिधि साहब चीफ मिनिस्टर थे, वो जो भी पॉलिटिक्स थी, तो वहां पे कोई आपसे हिंदी में बात ही नहीं करता था। सो वो हिंदी में बात ना करना जो मेरे को नहीं आती थी तमिल, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरी अक्ल कम हो गई। सो मेरे को नहीं आती थी, नहीं आती थी। अभी आई एम अ डूअर, डूअर के स्पेलिंग बदली कर दो, यू आर अ डोर लिखा हुआ है, आप एक दरवाजे हो। कहाँ खुलते हो भाई मुझे पता नहीं, लेकिन आप ये लिख रहे हो कि व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ दीज लाइव सेशंस। ये अभी के लिए हमने डिसाइड किया है, एवरी संडे 2 बजे ये मेरा सेशन होगा और इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए और जैसे मैंने बोला आप मुझे सजेशन दीजिए, नहीं तो मैं अपनी अपनी तरफ से जो मुझे अच्छा लगेगा मैं बोलता रहूंगा। सो आई थिंक अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल कि आप सब लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हो, और मैं भगवान का भी शुक्र मनाता हूं कि भाई मेरे को ये आइडिया दिया है कि मैं इस माध्यम से शायद आप लोगों के किसी काम आ सकूं। 1-to-1 तो करना बड़ा मुश्किल है, और लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी चीजें हैं वो मैं आपको करूंगा, आपके प्रॉब्लम का हल करूंगा। और जैसे मैं एक बार मैं उधर गया था आर्मी में रहते हुए, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जब मैंने उन बच्चों को देखा तो उनको मैंने कहा कि अभी जो है ना, मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे बेटे हो गए। सो मैं इसी तरह से आप लोगों को भी अपने बच्चों की तरह गाइड करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, और आई एम श्योर कि आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा होगा, और आप लोग जो है इसी तरह से अपनी जिंदगी में अच्छे काम करिए
और माता पिता की इज्जत कीजिए, छोटे भाई बहनों का ध्यान रखिए, अपने टीचर्स की इज्जत कीजिए और उसके साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। और मेरा ख्याल अभी कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो गई है। सो आपको जो है फिर मैं दोबारा से अगले संडे को मिलूंगा और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एंड जय हिंद।